Okay, hello again. I just thought, what if I have a problem uploading the link? It's been some time since I've been talking, so let's start again. Continue on, right? Fine. So we were on philosophical assumptions. So we're talking about transaction analysis, and there are some philosophical assumptions within the thing. Because we are so busy से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं interactions के बारे में, ठीक है? कुछ assumptions हैं एरिक बर्न की when we are interacting with people, जो interactions के बारे में पहले assumption ये है कि तुम्हारा ओके लोग पॉजिटिव होते हैं, वो उससे जैसे आप बात करो वैसे ही आपको जवाब देते हैं, ठीक है? सेकंड आप ओके फॉर इंस्टेंस if I ask Ahmed what time is it, Ahmed says that Mrs. 10 past 40. So this conversation in this context is a positive conversation. I asked him what time is it, and he answers me in the same mood, knowing that the lady is asking the time, so he asks me the time. If I ask him in class, for instance, when are your Eid holidays starting from, and he says that is 26th of May, right? So he understood me, what I'm asking, and he gave me the answer in the right frame of mind, and doing all calculations or whatever he thinks is the right answer. So philosophical assumption is people are okay. आप मुझे बताइए okay, is this assumption right? When we say people are okay, we are saying that what can they actually mean here? People are okay. As in, do you think people always respond to us the way we are asking them something? Do you think at times people are rude? Do you think at times people are abrupt? At times people are they behave unexpected also? So what I personally think is that this assumption is not correct. People are not always okay. For instance, there's a colleague sitting in my office. I came to the university 15 months back. Okay, so LMS is something I haven't been using for 4 5 years. ठीक है LMS क्या सॉफ्टवेयर है ना तो कुछ मुझे चीजें नहीं आती थी इसमें रिकॉल नहीं मैं कर पा रही थी कैसे करना है यार फिर ऑफिस में सारे खत्म बैठे तो मैंने पूछा मैंने कहा मुझे जरा बता दें ये कैसे कुछ करना है तो उन्होंने बहुत डिस्टेंस से अपने आप को रखा और मुझे कहा कि अभी मैं बिजी अपना काम कर रही हूँ ठीक है तो I mean, I came back. I visited back in my office. ठीक है सही मुझे लगा कि this was not a response to give. Okay, right? Um, I don't know. Maybe she was very time pressed. I can't say anything, or she was avoiding me. I can't say that too. But people are not always okay, right? ठीक है there are people who we ask help. There are people who we ask for direction maybe if you're lost, or there are people who we would ask for a certain meaning written on the wall in another language, maybe, right? So we're asking help in a genuine, general sense, right? And if some people walk over or they just not respond, then we don't find people okay, right? So people are okay, not always, not always. Some people may miscalculate mind gestures. For instance, if I am showing somebody inside the lift to be first, right? Fine. If I show somebody inside the lift to go to the first, right? The person may think, that oh, she is a weak person. I'm not weak. I'm just trying to be nice and thank you, right? Second assumption is everyone has the capacity to think. Do you really think so? Not everyone. See, everyone is a very strong word. पहली बात होती है that everyone has the capacity to think. ठीक है अभी तो मतलब पाकिस्तान की चालान से छुट्टी है ना तो लोग अब बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं टुवर्ड्स ब्रेकिंग द सिग्नल गाड़ी को चला देना और रेड लाइट ठीक है पास करना अब लोग बहुत इस चीज के बारे में कंसर्न है क्योंकि बहुत ही चालान बढ़ने पड़ रहे हैं ठीक है सही लेकिन जनरली जब चालान नहीं थे तो पीपल नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड despite people having the knack to think, people don't have the capacity to walk over it. So I kind of don't agree with this assumption that every person has the capacity to think. ठीक है बुरी बात है क्या लोग करते हैं ना ठीक है so despite people knowing that getting is bad some people tend to do it ठीक है so people decide their own destiny
how many people do you think in our country think that they decide their own destiny? Do you think some people think that destiny is already written, no matter what you do, it never changes? Uh, but a general assumption Eric Berne says is that people their own destiny, they decide their own destiny. Like, do you know that the person who had a dream of a two-nation theory, Allama Iqbal, right, finding a two-nation theory, was not an aristocrat's son. Was not an aristocrat's son. Do you know who his father was? His father was a tailor, he used to tailor clothes. He had a very humble and modest background. But he, from childhood, was destined to do something big in life. He is known as, a person who are one of the figureheads towards having the country achieve independence. So it totally depends on your assumptions. Okay? Primarily, people decide their own destiny. Okay, and whatever decision you take towards making your destiny, that can change your life and that will also ruin you. Right? Talking about levels of communication, so communication can be done at a social level. When the meaning of the communication is understood in the same way. For instance, I say, hi, Mary, how are you? And he says, I'm good, thank you, Jacqueline. This is a social level of communication, right? Or for instance, if I ask the watchman while leaving the university at 6 p.m. in the evening, it's not today, come asking for me. It's a social level of communication in which the meaning is understood in the same way the message came, right? And the guard tells them, Miss Bhumi, I'm looking for you today. Day before somebody came. This is a social level of communication. So there's a meaning of communication as it is naturally understood in the social circle of the people concerned. It is often conveyed in the literal meaning of the word. Social level communication में वही meaning समझा जाता है जो meaning literally कहा गया. Means nothing else beyond what was expected to be asked. Okay. For instance, if I ask Aryan, will you be able to send on 11th? So this answer could be either a yes or a no. He cannot say a mountain, a tree, or a mouse in response. Okay. So social level communication में literal meanings में बाकी को समझा जाता है और जवाब दिया जाता है. लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो आप जो है लिटरल मीनिंग्स में मैसेज नहीं दे रहे होते, आपका अल्टीमेट मैसेज कुछ और होता है. ठीक है, सही. जैसे फॉर इंस्टेंस आई आस्क Sad, if it's a social level of conversation, social level of communication, I ask Sad, how old are you? Right? Fine. Let us suppose I ask Sad to write an essay on my life at Beria. This person essay, I've read it, and I ask him, how old are you? So if the conversation is social level, he would say, yes, I'm 21. Okay? If the conversation is psychological level, then my intention of asking him, how old are you, son? There is an ulterior motive behind. I may ask this question, how old are you, to make him feel bad, and this is what you want. A 5-day student can do better. Or I may make him feel, or the question may be asked to make him feel more, rewarded, that you're 20 and you wrote something so nice, is to the point, so grounded, having good sense of direction. I like your conviction in your writing. So the psychological level, there's always the ulterior motive behind, remember. Okay, after word use करने बोलते हैं, उसके पीछे actually एक अलग inherent meaning होता है. Right? ठीक है. So psychological level communication is real meaning, and it requires intuitive judgment to find out कि ये सवाल actually मुझसे क्यों पूछा गया. जैसे मुझे कोई पूछता है, जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे पूछता है which country you're from, तो मुझे लगता है कि ये शायद कोई नेशनलिटी नहीं जानी है. मुझसे कोई ना कोई गलती ऐसी हुई यहाँ पे कि तो पूछना पड़ गया कि साहब एक्चुअली कौन सा बुक सही नहीं है, या तो मैंने क्यों तोड़ा है, या मैंने किसी को सोशली बुरा ट्रीट किया है, या मैंने पैसों के लेन देन में कोई 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 क्लेवरनेस दिखाई है. ठीक है, या मैं जहाँ रह रही हूँ वो जगह टाइडी नहीं है, तो कोई ना कोई काम मैंने ऐसा किया कि अगला शख्स अलर्ट हो गया है. वो अपेरेंटली तो उसने मेरी नेशनलिटी पूछी है, लेकिन इनहेरेंट मीनिंग उसका क्या है, वो इज ट्राइंग टू मेक मी रियलाइज कि साहब यू सच अ मिसफिट, कहाँ से आएंगे आप. साइकोलॉजिकल लेवल पे सिर्फ हमारे कॉन्सेप्शन का ना एक हिडन अल्टीरियर मीनिंग भी होता है, उसको कहते हैं रियल मीनिंग. द रियल मीनिंग
the real reason the person asked which country I'm there from. I belong to. Okay? So it requires an intuitive judgment for the person to answer and understand more, and it could be conveyed by non-verbal signals also. ठीक है, अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में टॉपिक है ये. सो लेवल्स आर congruent if they convey the same message, right? Congruent means being on the same plane, right? Fine. For instance, if I ask Alia that when is Eid, and she says it's on 26th of May, this is congruent communication, right? The levels are congruent if they convey the same message. I ask when is Eid, and she gives me a message in the same direction. There is incongruity between the levels if they convey different messages. For instance, if I ask Alia when is Eid, and she says, बस ईद अभी हमारे पास 10 days का ऑफ नहीं है, पहले में 10 days ऑफ मिलता है, दिस टाइम वी गेटिंग एन ऑफ फॉर जस्ट 3 days. तो मैंने उनसे तारीख पूछी है और उन्होंने जवाब दिया है. वो ये बता रही है कि ईद में कम हॉलीडेज होने की वजह से किस तरह से वो ईद को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. तो मैंने थोड़ी पूछा उनसे. दिस इज इनकॉन्ग्रुएंट कम्युनिकेशन. ठीक है. Now, incongruent messages at psychological level are called ulterior messages. आलिया को however ये महसूस हुआ है कि जैकलिन ने मुझसे जब पूछा है ना ईद कब है, तो ये एक्चुअली पूछना चाह रही हैं कि भाई ईद जो है वो आप कितने दिन तक रहेगी, कितने दिन तक आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, कितना आपको ऑफ मिला है. तो कोई अल्टीरियर मैसेज है इनका. ठीक है, सही है. अच्छा, आमतौर पर इंटरेक्शन डिस्ट्रॉय होती है ह्यूमंस में, ट्रांजैक्शंस बेटर कम होते हैं ह्यूमन इंटरेक्शंस में जब वो इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है. आप जो बात बोलते हैं उसके अंदर एक इनहेरेंट मीनिंग होता है, उसके अंदर अल्टीरियर मैसेज होता है, तो उससे जुड़ जाते हैं और लोग रिजल्ट आते हैं. ठीक है, सही है. तो कोशिश है सर एक दूसरे से बातचीत करें तो सोशल लेवल पे जाए, राइट? आस्क पीपल थिंग्स, यू कैन बी डायरेक्ट एंड रिस्पेक्टफुल एट द सेम टाइम. ठीक है, सही है. यू कैन बी मॉडेस्ट एंड okay, the word direct is often very misunderstood in our culture society, so I'm not going to use it. आमतौर पर लोग डायरेक्ट होते हुए थोड़े rude है, थोड़ा बदतमीज है. So I'm not going to use this word direct. I would suggest that you can talk with conviction, right? Stay modest and talk with permission. ठीक है, सही है. अच्छा, now the basic topic of this whole discussion, Freud and Bern. Freud is somebody we studied in the past class, Sigmund Freud, and Bern is somebody we're talking about today, right? So Freud talks about the fact that humans have three parts. Our personalities have three parts: the id, ego, and the superego. Where id is the player principle, ego is the reality principle, and superego is the morality. ठीक है. बर्न कहता है कि हमारी पर्सनैलिटी में तीन लोग होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में तीन तीन रिफ्लेक्शंस होती हैं. ये कि who we've been as a child. ठीक है. आप अभी 20 years के हैं, I'm 46 right now, so who I am as a personality. ठीक है. There's a lot to do with the inner child inside me, and every person has a child inside. ठीक है, सही. It has a lot to do with the adult I am. The adult is the ego state, the real reality as if of the here and now, the present moment, and I also have a parent inside me. ठीक है, सही. हम बेसिकली क्या पढ़े, फ्रॉइड ने और बर्न ने दोनों ने पर्सनैलिटी की थ्योरीज दी हैं. ठीक है. फ्रॉइड को हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या पर्सनैलिटीज के बारे में. बस पर्सनैलिटीज इट पे हावी होती है, बस ईगो पे हावी होती है, बस सुपर ईगो पे हावी होती है. हर पर्सनैलिटी बाहर लेती है, चीजें होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा. ठीक है. बर्न का कहना है कि हर इंसान में देयर इज अ चाइल्ड, देयर इज एन एडल्ट एंड देयर इज अ पेरेंट. ठीक है. चाइल्ड क्या है? चाइल्ड एक ऐसा मेरी पर्सनैलिटी का एक शख्सियत का एक ऐसा आप समझ लो रुख है जो करीब करीब एक जैसा है. हाउ चिल्ड्रन बिहेवियर, चिल्ड्रन आर स्पॉन्टेनियस. ठीक है. चिल्ड्रन आर एक्सप्लोरेटरी. हर चीज की वाई में जाते हैं, क्यों में जाते हैं. ठीक है. हर चीज को टटोलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, राइट. ठीक है. जो चीजें मानना होती है अपने को उसमें नहीं जाते हैं. ये चाइल्ड बिहेवियर ना. ठीक है. चिल्ड्रन थ्रू टैंट्रम्स, दे आर अनरीजनेबल, वो जिद्दी होते हैं. ठीक है. दे वांट थिंग्स देयर वे. तो हाँ, होना भी बाज दफा एक चाइल्ड होता है जो बाज दफा थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू हैंडल. ठीक है. और ये 80 years में भी होता है, 70 years के लोगों में बाज दफा एक चाइल्ड बाहर आ जाता है रॉन्ग सिचुएशंस में, जहां कपड़ा बन के दिखाना होता है वहां बच्चों के काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, डिफिकल्ट हो रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आप इमोशन को शो कर रहे हैं. ये सब चाइल्ड बिहेवियर होता है.
ठीक है, सही है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपकी क्लास में आलिया को डांटू किसी बात पे लेट आने पे, इसकी ब्लड से हो रही है, झिझकियों से हो रही है, आंसुओं से हो रहे हैं, गले में आंसू बह रहे हैं, तो सपोज प्राइवेट चिल्ड्रन डू दैट। वर्कप्लेस पे कभी भी स्टूडेंट्स डोंट क्राई, नो मैटर हाउ बैड यू हर्ट, no matter how bad a day, don't come to work if you think that the moment you see people you're going to blood into tears, आपको इस तरह की एंजाइटी हो रही है, don't come to work, please take an off। ठीक है, people should not see your weak side। ये मेरा आपको सजेशन होगा। एडल्ट हमारे अंदर होता है जो हम बताते हैं रियलिटी चीजों के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, तो हमारा जो एडल्ट पार्ट है और जो हमारा ईगो पार्ट है, ये बर्न और फ्रॉइड की थ्योरी में काफी कॉमन है। इस तरह से हमारा जो पेट पार्ट है, चाइल्ड पार्ट है, ये भी दोनों में काफी चीजें कॉमन है। ठीक है, चिल्ड्रन आर इम्पल्सिव। ठीक है, वो अचानक से कुछ अचानक से वो होते हैं, चिल्ड्रन बिहेवियर यही तो होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, पेरेंट हमारे अंदर क्या होता है जो हमें रोकता है गलत कामों से, या हम जो किसी से कहते हैं भाई ये काम नहीं करना, ठीक है, ये करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ। पहले से भी किया था, हमारा सब अच्छा, हमारा हमें कोई अच्छा रिवॉर्डिंग आउटकम नहीं मिला था, तो हम ये नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका तो पेरेंट होता है जो आपको रोकता है या आपको आपको इनकरेज करता है कि हाँ ये काम करना है। सो वी ऑल हैव पेरेंट इनसाइड अस। ठीक है, सही है। सो at, at the nexus of these two theories, like psychological aspects, sexual aspects, resolution of child conflict is not necessary, and the here and now approach, we'll talk about this later। ठीक है, सही है। अच्छा, हाउ कैन वी एनालाइज नेचर ऑफ पीपल? लोग क्या नेचर होती है, कैसे एनालाइज कर सकते हैं? ठीक है, तो हम लोगों की नेचर को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू फोर टाइप्स ऑफ एनालिसिस। मेरी नेचर क्या है, आपकी नेचर क्या है, आपके एचओडी की नेचर क्या है, आपके एडोस्टेट की नेचर क्या है, आपके लिवर की नेचर क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेचर। ठीक है, मदर्स नेचर, प्रेफरेंस नेचर, कैसे एनालाइज कर सकते हैं? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यानी कि उनकी शख्सियत को आप जाने, एनालाइज देयर पर्सनैलिटी एंड यू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। वी कैन डू थ्रू ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जिसमें क्या हो जाता है, व्हाट डू दे डू एंड से टू ईच अदर। ये जब लोगों से मिलते हैं तो ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, उन्हें मिसट्रीट करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनसे इज्जत से बात करते हैं, दे टॉक डाउन टू ईच अदर। तो ट्रांजैक्शंस के थ्रू भी हम लोग के नेचर को जान सकते हैं। देन वी हैव स्क्रिप्ट एनालिसिस, जिसमें क्या जाता है, द लाइफ ड्रामास पीपल प्ले आउट। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आज। एंड देन वी हैव गेम एनालिसिस, जिसमें क्या जाता है, ट्रांजैक्शन, अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस लीडिंग टू पे ऑफ। ठीक है, so structure analysis or transaction analysis kind of easy, script analysis or game analysis थोड़ा tricky है। let me explain this to you। ठीक है, structure analysis में हम बात करेंगे about the fact that each person has three core states। ठीक है, we are talking about Burns' take on personality। Each person has three core states, so we have a parent, ठीक है, we have an adult and we have a child। इसका जैसे मैं आपके सामने हूँ, मेरी शख्सियत में तीन एस्पेक्ट्स हैं, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। हाँ, मैं एडल्ट हूँ, I'm 46 year adult, लेकिन मेरे अंदर तीन लोग मौजूद हैं, चाइल्ड, द पेरेंट एंड द एडल्ट। ठीक है, अब पेरेंट कैसा होता है, दूसरे होता है क्रिटिकल होता है। जब मैं आपसे कहते हैं वॉकिंग इन द क्लास लेट, इज दिस द टाइमिंग, तो बहुत कहता है आपके अंदर पेरेंट बात कर रहे हैं। जब मैं आपसे कहते लिसन टू मी वंस, कीप योर बुक्स इनसाइड, कीप योर फोन्स इनसाइड, तो आई एम बीइंग अ पेरेंट। कैसा पेरेंट? क्रिटिकल पेरेंट। आई एम पॉइंटिंग फिंगर्स एंड आई एम टेलिंग यू नो फोन्स इन द क्लास, यू आर नॉट लिविंग द क्लास व्हेन आई एम टीचिंग यू। तो व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट एम आई? क्रिटिकल। ठीक है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी आपके सामने है ना। ठीक है, उस पर्सनैलिटी में बना टेलिंग यू द डूज एंड डोंट्स, ये करना है, ये नहीं आपने करना। तो आई एम, तो मेरी पर्सनैलिटी का पेरेंट बाहर आता है, एंड आई एम बीइंग क्रिटिकल। ठीक है, जब मेरे पास फॉर इंस्टेंस आपकी क्लास में स्टूडेंट है, 2 sessions back, when I was wrapping up the class, she was wearing a mask। She came close to me on the podium and she said, Miss, I've given my last quiz। ठीक है, सही है। उन्होंने कहा, Miss, I have chicken pox। I said, what? She said, I have chicken pox। I said, why would you come to school? You will infect other people. Go home, hurry up, go, 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 go. Others side is infected, you should not come out। So my conversation with her, this side of my personality is again parent, where I'm being nurturing, I'm showing care for her। ठीक है, बल का कहना यह है कि हमारी जो नर्चरिंग क्रिटिकल साइड होती है ना, हमारी जो नर्चरिंग क्रिटिकल साइड हम दोनों में से जो भी दिखाते हैं, ये बेसिकली द मिमिकिंग आवर पेरेंट्स। ठीक है, इसलिए कि बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग दें।
We mimic our parents. We are part our parents. Remember that. आपके वालिद आपके वालिदा घर में किस तरह से रहते हैं ना, आपको क्या उन्होंने अपब्रिंगिंग दी है, सो आपकी पर्सनैलिटी में उसका बहुत अमल दखल होता है। राइट। ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में हर वक्त क्रिटिकल होना अगर रहता है, तो ये भी आपने अपने पेरेंट्स से सीखा है। आपकी पर्सनैलिटी हर वक्त नर्चरिंग है, चलो एक और मौका दे के देखते हैं। ठीक है। तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी में आपके आपने पेरेंट को मिमिक आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नर्चरिंग और क्रिटिकल सिचुएशन देख के, तो ये भी आपके पेरेंट्स से होता है। ठीक है, सही है, राइट। रिमेंबर वी मिमिक आवर पेरेंट्स। ठीक है। सो फैक्चुअल एनालिसिस में क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू एनालाइज पीपल्स पर्सनैलिटीज, सो हाउ टू एनालाइज पीपल्स नेचर, सॉरी हाउ टू एनालाइज पीपल्स नेचर, सो वी कैन डू स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है। जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे अंदर क्या है, पेरेंट, और फिर हम जो हमारे अंदर होता है चाइल्ड। पहले हम चाइल्ड की बात करते हैं, पेरेंट की बात। ठीक है। चाइल्ड क्या होता है, नेचुरल। फॉर इंस्टेंस, चिल्ड्रन आर नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है कि आप टीवी देख रहे हैं किसी लाउंज में, आपके घर में सबसे छोटा बच्चा है, वो किचन में गया, उसको फ्रिज नजर आया, उसने फ्रिज खोला। ठीक है। उसने बिल्कुल लोअर सेक्शन जो वेजिटेबल की स्टोरेज क्या होता है, उसने उसको पुल किया छोटे छोटे हाथों से जितना वो कर सकता है। उसने वेजिटेबल्स निकाली, उसने खाना शुरू करी, उसने खड़ा हुआ, छोटा सा है वो, खड़ा हुआ, उसको डिश नजर आई, उसने डिश निकाली, फ्लोर पर रखी, खाना शुरू किया अपने हाथों से ही। चिल्ड्रन ना नेचुरल। उन्हें लगता है भाई एक चेंबर है इसमें खाना स्टोर है, तो मैं जाके खोल के खा सकता हूँ। चिल्ड्रन ना नेचुरल। ठीक है, सही है, राइट। नेशनल बिहेवियर्स में क्या आता है कि वो अचानक से रो पड़ते हैं, अचानक से वो हंसने लगते हैं, अचानक से वो फनी हो जाते हैं। ये सब नेचुरल बिहेवियर है ना, एडल्ट्स हम ऐसे थोड़ी होते हैं। हम सिचुएशन देख के एक्सप्रेस करते हैं। चिल्ड्रन आर जस्ट स्पॉन्टेनियस, दे आर नेचुरल, वो मौका महल देख के एक्सप्रेशन नहीं करते। ठीक है। फिर चिल्ड्रन आर अडेप्टिव। बाद बच्चे जो हैं वो एनवायरनमेंट देख के अडेप्ट करते हैं। बच्चे घर में जो है बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं, घर में बहुत शोर शराबा करते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, एंड वंस दे सेंसिटाइज साइलेंस अराउंड देम, दे अडेप्ट टू इट। खामोशी से बैठना है। ठीक है। एंड सम चिल्ड्रन आर लिटिल प्रोफेसर। लिटिल प्रोफेसर क्या होता है कि इस ड्रॉर में क्या है खोल के देखते हैं, उस अलमारी में क्या है खोल के देखते हैं। दिस इज लिटिल प्रोफेसर, एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, सही है। तो मुझ में और आप में जो एक फ्री नेचर है ना, फ्री नेचर होती है कि हम बाज दफा अपने ब्रेक टाइम में खुद चूज करते हैं कि म्यूजिक सुनेंगे, हम नेटफ्लिक्स देखेंगे, हम लाउंज चले जाएंगे, हम किसी से थोड़ी गपशप करेंगे। तो ये हमारे अंदर चाइल्ड होता है। ठीक है, सही है। और हम बाज दफा स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, राइट। बाज दफा हम पैसिव भी होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम नाराज हो गए अगले 2 घंटे तक, तो ये हमारे अंदर क्या होता है, चाइल्ड। तो अपार्ट फ्रॉम दिस टू वी ऑल्सो हैव एन अडल्ट इन साइड अस। एडल्ट क्या करता है, रैशनलाइज करता है चीजों को। ठीक है, जज्बाती नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस, जब मैं आपके क्लास के स्टूडेंट से कहती हूँ कि बेटा आप जो हैं, इफ यू डोंट हैव अ हैंड आउट प्लीज गो राइट नाउ डाउनस्टेयर्स टू द फोटोकॉपियर शॉप एंड अरेंज इट फॉर यू, अरेंज इट फॉर योरसेल्फ एंड कम बैक। ठीक है। तो अगर तो वो फौरन से मुझे कहता है ना कि मिस आई डोंट हैव इट, आई एम स्टिल सिटिंग हियर, तो ये बर्न कहता है उसके अंदर भी एक चाइल्ड बात कर रहा है आपसे। उसको बुरा लगा कि आपने उसको 50 लोगों के सामने कहा अपना हैंड आउट लेके आइए, तो उसने अपने फ्री स्टेट ऑफ माइंड में आपसे जवाब दे दिया, आगे से मैं नहीं लेके आ रहा भाई, कर लो जो करना है। लेकिन बर्न कहता है कि अगर वो शख्स मतलब एक प्रॉपर पर्सनैलिटी है, जो कि टाइम के साथ साथ साइकोलॉजिकली सोशली डेवलप हुई है, तो उसको चलेगा पता है कि आई कैन नॉट बिहेव लाइक अ चाइल्ड राइट नाउ, आई ऑट टू बी एन एडल्ट। एंड ऑन अ रैशनल नोट दिस लेडी इज नॉट एन एनिमी, शी इज जस्ट सेइंग दैट इन ऑर्डर टू बी in parallel discussion with the classroom, you need to have a point of discussion in your hand, so go and bring your hand out. She's not against me. This is being rational. ठीक है। तो बर्न ने क्या कहा, हर इंसान के अंदर क्या है, पेरेंट भी है, चाइल्ड भी है, और एडल्ट भी है। ठीक है। गलती कहाँ करते हैं यार लोग, गलती यहाँ करते हैं लोग कि जिस सिचुएशन में आपको चाइल्ड होना पड़ता है वहां आप एडल्ट हो गए। फॉर इंस्टेंस आपको किसी ने बर्थडे में बुलाया है, तो क्या करेंगे आप, जब बर्थडे केक कटता है वी सिंग द बर्थडे सॉन्ग। हमने बहुत दफा बर्थडे में देखा है कि व्हेन द केक इज कट, बर्थडे सॉन्ग व्हेन एवरीवन इज सिंगिंग। ठीक है, सही है। कुछ लोग कोनों में जाके हॉल के बैठ जाते हैं, बिल्कुल गुस्से से मुंह बना के, भाई ना आते यार, इतनी जबरदस्ती आने की क्या जरूरत थी। ठीक है। इट्स अ फन मोमेंट, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, यू शुड ब्रिंग आउट द चाइल्ड आउटसाइड यू। या बाज लोग बर्थडे में जो बर्थडे कैप्स बच्चे पहनते हैं ना, एक बर्थडे कैप होती है पॉइंटेड सी, ठीक है, सही है। बाज लोग वो नहीं पहनते, मर्जी होती है सबकी। ठीक है। आई वेयर इट फॉर माई nieces एंड नेफ्यूज। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि साइकोलॉजी पढ़ते वक्त हम ज़हन में रखें कि चिल्ड्रन डोंट नो एज अडल्ट्स। बच्चों को नहीं पता होता हम अडल्ट्स हैं। ठीक है। बच्चे सेंस डेवलप करते हैं 8 साल में, 11 साल की उम्र में जाके। बिलो 5 इयर्स उन्हें लगता है कि हम सब इंसान सेम प्लेन पे हैं, तो जब बर्थडे हो रही है, ठीक है, सबने कैप पहने, तो ये भी पहनेंगे। सो माय nieces एंड nephews व्हेन दे हैविंग their birthdays they would bring their caps। तो आपके सामने आई एम अ डिफरेंट पर्सन,
classroom I'm a different person. I cannot come wearing a birthday cap. ठीक है? But when I'm celebrating my nieces and nephews' birthday and they want me to be part of the joy, I do wear a cap. I do sing the birthday song. ठीक है? उनकी फनी बातों पे हंसना, वो चाहते हैं हमारी फनी बातों पे आप हंसें, मैं हंसती हूँ उनके साथ. दिस इज माई चाइल्ड, राइट? आई वांट टू रिलेट विद देम. अगर वो कोई फनी कार्टून देख रहे हैं, दे स्माइल, आई वुड स्माइल विद देम. ठीक है? और अगर मैं बिल्कुल सीरियसली बैठूं, बिल्कुल गुस्से से बैठूं और मैं दिखाऊं कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है कोई भी इन चीज में, बच्चों वाली बात है, तो आप जो है उस पूरी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. द चाइल्ड वुड नॉट लाइक टू एसोसिएट विद यू. ठीक है? सही है, राइट? सो द कैच लाइज इन अंडरस्टैंड सिचुएशन. जहां पे आपका पेरेंट बाहर आना चाहिए वहां आपका पेरेंट बाहर आए. सपोज करें आपकी क्लास जो है ड्राइंग लेक्चर है. So you know me as a person that this lady teaches us, and I've been with you for almost 4 months now. You are with me for 4 months now, so we know each other by face, we know each other by personalities also. During the lecture, let us suppose a strange person walks in the class. You've never seen the person on campus, and he asks, for instance, he asks the boy sitting next to the door, "Come with me. Your father is calling you. He has sent me to pick you." Do you think a boy your age would blindly go and follow? वो नहीं जाएगा. वो क्या बोलेगा कि if my father wanted me to come home or drop a message, he would have ring me himself. Why would he send a strange person? No sir, I'm not coming with you. तो बर्न कहता है इस वक्त ये आपका पेरेंट बात कर रहा है, आपके अंदर का पेरेंट है. जब आप कहते हैं ना, आई एम नॉट डूइंग दिस, और मुझे लगता है सही काम नहीं है करने वाला, तो ये आपका एडल्ट और पेरेंट दोनों है. आपने रैशनलाइज किया कि दिस इज अ स्ट्रेंज पर्सन, ही इज ट्राइंग टू किडनैप मी, मे बी ही इज ट्राइंग टू अबडक्ट मी. ठीक है? एंड व्हेन यू गिव अ फर्म नो, आई एम नॉट डूइंग दिस, तो ये आपके अंदर आपका पेरेंट बात कर रहा है. ठीक है? सही है. अच्छा, so this is a Burns model of ego states. A further description. It focuses on three ways that people have for expressing personality. Okay? These are the three ways. We express our personality either through our parent, either through our adult, or either through our child. बाज लोग irrespective of situation ज्यादातर अपना child बाहर रखते हैं शख्सियत में. बाज लोग irrespective of situation ज्यादातर rational thinking करते हैं. बाज लोग irrespective of situation ज्यादातर उनका पेरेंट हर वक्त बाहर होता है. ठीक है? सही. तो बर्न कह रहे हैं कि दिस मॉडल एक्चुअली, द ट्रांजैक्शन एनालिसिस मॉडल, इट फोकसेस ऑन थ्री वेज दैट पीपल हैव for expressing personality. The three ways could be either we express through our parent, either through our adult, or either through our child. ठीक है? सही है. Now each set of behaviors, ठीक है, is consistently accompanied by a set of thoughts and feelings which represents that ego state. Child होना भी एक thought है, child होना भी एक feeling है. Likewise is parent and likewise is being adult. ठीक है? Each way is distinctive, जाहिर है, and has its own observable set of behaviors. ठीक है? Ego state is a consistent pattern of feelings and experiences directly related to corresponding pattern of the behavior. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स टेक इट अप अगेन. दिस इज बर्न्स मॉडल ऑफ ईगो स्टेट्स. वी ऑल हैव अ पेरेंट इनसाइड. पेरेंट ईगो स्टेट क्या बताती है? ये हम जैसे बिहेव करते हैं एज अ पेरेंट दुनिया में, ये हमने बेसिकली कॉपी किया होता है अपने माँ बाप से. ठीक है? जैसे मेरे एक स्टूडेंट हैं, वी वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज अ टॉपिक वी हैड डन प्री मिड टर्म्स, इफ यू रिमेंबर. सो आई आस्क्ड द स्टूडेंट, हाउ डू यू हैंडल प्रॉब्लम्स? तो कह रहे हैं, मिस मैं बहुत काम रहता हूँ. मैंने कहा कैसे आप काम रहते हैं? प्रॉब्लम्स में तो लोग जिटरी हो जाते हैं, उनमें एंग्जाइटी हो जाती है, वो इरोड हो जाते हैं, वो वॉलेटाइल हो जाते हैं, वो अटैक मोड में आ जाते हैं. कह रहे मैं उसमें बहुत शांत रहता हूँ. मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा? कह रहे मिस माई ग्रैंड फादर इज अ वेरी काम मैन. फिर उस बच्चे ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी. उन्होंने कहा बस मुझे गुस्सा नहीं आता. मैंने कहा ये बस उस बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा है, मुझे गुस्सा नहीं आता. उन्होंने कहा बस मुझे गुस्सा नहीं आता. मैंने कहा गुस्सा नहीं आता, हाउ डू यू मैनेज दैट? कह रहे मिस माई फादर, आई हैव नेवर सीन माई फादर एंग्री. तो मैंने कहा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते कि आप ये कह रहे हैं? कह रहे मिस प्रॉब्लम सबकी लाइफ में ही है, लेकिन आई नेवर सीन हिम नॉट बीइंग एबल टू कंटेन विद हिज एंगर. हिज इमोशन डजंट राइड हिज लॉजिक. वो बड़े लॉजिकल शख्स हैं, वो अपनी रिलेशनशिप घर में खराब नहीं करते. तो मैंने कहा उन्होंने किससे सीखा? कह रहे मिस माई ग्रैंड फादर, ही इज अ वेरी काम पर्सन. सो द फैक्ट दैट आई होल्ड काम इन माई लाइफ, आई हैव कॉपीड इट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंटल फिगर्स. तो गुस्सा जब आता है, जो मेरा बिहेवियर होता है, उस गुस्से से कैसे निकलना है बाहर, कैसे रास्ता निकालना है, कैसे चीजों सोल्यूशन लेके आना है, तो एक थॉट प्रोसेस है ना. ठीक है? गुस्सा एक फीलिंग भी है, लेकिन कैसे से आप निपटेंगे? उन्होंने कहा मिस आई कॉपीड फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड फिगर्स. अच्छा, मेरे केस में जो है, आई थिंक आई एम मोर लाइक माई बोथ पेरेंट्स. My parents are strict disciplinarians. Allow me to share.
strict disciplinarians. My mother has been a convent teacher for 10 years before her marriage. She was 25 when she got married. तो उससे पहले शी वॉज अ कॉन्वेंट टीचर. बहुत पुरानी बात है ये, मतलब 46 years बैक. उस वक्त कॉन्वेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, आपकी सोच होती है. एंड दे वर पीपल फ्रॉम यूरोप देयर फॉर मैनेजमेंट एंड फॉर टीचिंग एंड ऑल. सो इट वाज रन एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय फॉरेनर्स. ठीक है, सही है. तो वो चीज़ उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है यार. शी इज़ अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन. और कोई चीज़ अगर आउट ऑफ लाइन हो तो दैट ट्रिगर्स हर बैड. उन्हें गुस्सा आता है. ठीक है, जायज़ बात पे ही आता है, लेकिन गुस्सा उन्हें फौरन से आता है. माई फादर इज ऑल्सो somebody who would want things in order. ठीक है. तो ये बात कि मैं आउट ऑफ लाइन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, डिविएंट बिहेवियर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ. वो लोग जो 20% देते हैं, मैं मुझे बुरा लगता है कि कोई 20% है. मुझे लगता है लाइफ में 100% देनी चाहिए, और उस चीज़ से मुझे वाकई गुस्सा आता है. राइट, ठीक है, आप कोशिश करें ना, अपनी 100% कोशिश करें. तो मुझे लगता है मेरी जो वजूहात है ना गुस्सा आने की, जो रीजंस हैं, वो मेरे पेरेंट्स से लिए हैं. मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है ये. ठीक है, सही है. तो ये रैंडमली नहीं आया कहीं से. ठीक है, वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता. हमारे अंदर जो पेरेंट होता है वो कहाँ से आता है, हमारा जो पेरेंटल बिहेवियर है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, फ्रॉम आवर पेरेंट्स. ठीक है. अच्छा, हमारे अंदर एक चाइल्ड भी है. सी इज द चाइल्ड, पी इज द पेरेंट. पहले चाइल्ड देख लें. चाइल्ड क्या है? चाइल्ड का बिहेवियर अलग है, पेरेंट का बिहेवियर अलग है. पेरेंटल बिहेवियर क्या होगा? डोंट डू दिस, और कम हियर, आई विल गिव यू अ हग. ये पेरेंटल बिहेवियर होता है. अच्छा, मेरे पेरेंट्स पे एक अच्छी बात ये है, स्पेशली इन माय फादर, कि उनको गुस्सा आता है, बहुत इंतहा का गुस्सा आएगा, लेकिन वो दूसरा मौका जरूर देते हैं. ठीक है, सही है. हम्म, या, ठीक है, मैंने उनसे सीखी है चीज के दूसरा मौका भी दे. जहां आप क्रिटिकल हो, when you're pointing fingers, you also need to be a nurturer also. If somebody apologizes and says that I need a second chance, my father would allow that person. ठीक है. इस तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं इस चीज को अडॉप्ट करूं और अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाऊं. ठीक है, मेरे साथ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जनरली आई एम ऑन गुड टर्म्स विद माई स्टूडेंट्स. ठीक है. लेकिन बात दफा बच्चों को, अभी जनरेशन में क्या है, वो ये समझ में नहीं पाते हमारे 3 घंटे बड़े कीमती हैं. हमने पैसे दिए हैं तो हम एजुकेशन लेकर ही निकलनी चाहिए ना बाहर. ठीक है. बहुत से बच्चे फोन पे होते हैं अपने, तो देयर आई लूज माई काम एंड आई वुड गिव देम माई पीस ऑफ माइंड, नो फोन्स इन द क्लास. तो उसमें बाज दफा कुछ बच्चे, वंस इन अ ब्लू मून, बाज दफा वो रिटेलिएट करते हैं, वो दे बिहेव लाइक अ रेबल, थोड़े वायलेंट हो जाते हैं. ठीक है, सही है. अच्छा, बिफोर 4 PM, बिफोर स्कूल एंड्स, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो आके अपोलोजाइज करते हैं, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर. ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि यार बच्चों में मतलब इतनी तहजीब है, उनमें इतनी अच्छी शख्सियत है कि वो बिफोर वर्किंग आवर्स एंड वो आते हैं और वो दे वुड मेक अप विद द रिलेशनशिप. 5E में स्टूडेंट है फैसल, ब्यूटीफुल बॉय. देखिए स्टूडेंट्स, इंसान की ब्यूटी ये नहीं है कि वो, उसके पास ब्लू स्किन्ड है, या वो ब्लॉन्ड है, या उसके येलो हेयर और येलो आईज हैं. ये ब्यूटी नहीं होती है. ठीक है, यू कैन हैव दीज थिंग्स एंड स्टिल बी एन अगली पर्सन इनसाइड. ठीक है. आई स्कोल्डेड द बॉय ऑन समथिंग इन द मॉर्निंग. I don't know, maybe he was on phone constantly and then he dropped in very, very late. तो obviously I had to, tell him that this was not on. तो उन्हें कोई बात बुरी लगी तो सीट से उठे और सीट को बैंग करते हुए, दरवाजा बैंग करते हुए क्लास से बाहर चले गए. तो मैंने उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बच्चा बहुत गुस्से में था उस वक्त. ठीक है. तो दिस वॉज इज चाइल्ड बिहेवियर. हालांकि वो 5-20 साल के हैं, लेकिन उस वक्त उनका गुस्से को कंटेन ना करना, ठीक है, सही है, ही वॉज रिप्लेइंग हिज चाइल्ड मोड. वो इरेशनल हो गए, तो समझ में नहीं आती करना क्या है. बच्चे होते हैं, चीजें पटकना, घोर मारना, चीजों को गुस्सा दिखाना. आपके साथ जब 40 लोग बैठे होते हैं ना, समझदारी की क्लास, समझदारी की उम्र में, एज एन एडल्ट आप ऐसा बिहेवियर नहीं शो करते. आपके सामने टीचर होता है, आप एक यूनिवर्सिटी में होते हैं जो बाय फार एक हाईएस्ट प्लेस ऑफ लर्निंग होती है, आपके साथ 40 लोग और बैठे होते हैं. यूर वेरी मच कॉन्शियस पर्सन देन. You don't let your emotion ride over your logic. लेकिन फैसल couldn't contain with it. ठीक है, he behaved like a child. थोड़ा सा गुस्से में आए, ट्रिगर हो गए, दरवाजा पटखा बाहर चले गए. ठीक है, सही है. टी ब्रेक मैंने दे दी थी उनको. अच्छा, टी ब्रेक के बाद वो क्लास में वापस आए हैं. ठीक है. सेशन जब एंड हुआ है, द बॉय इज सो स्ट्रॉन्ग, ही केम टू माई पोडियम एंड ही मेड अप विद मी. ही सेड, मिस आई एम सो सॉरी फॉर माई बिहेवियर, प्लीज डू फॉरगिव मी. तो मेरे अंदर फिर एक नर्चरिंग पेरेंट भी है ना, वो कहता है कि इट्स ऑल राइट, आई एम हैप्पी दैट यू आर बैक. ठीक है. हर वक्त क्रिटिकल होना से पेरेंट अच्छी बात नहीं है.
आप भी मूव ऑन करो ना, बच्चा मूव ऑन किया आपके पास आया है, कीप योर डोर्स ओपन। बाज लोग हमेशा क्रिटिकल रहते हैं, नहीं मुझे याद है तुमने वो किया था, सुबह तुम गुस्ताख हुए थे, अब हम बात नहीं करेंगे आइंदा 3 महीने तक। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स यू हैड। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे थे जो माफ नहीं करते, सेकंड मौका नहीं देते, तो यार फिर आई एम सॉरी, आप भी ऐसे ही होंगे। ठीक है। सो आई एम ग्लैड आई अडॉप्टेड दिस फ्रॉम माई फादर, वो सेकंड मौका देते हैं, बट ही वुड वेट फॉर यू टू कम टू हिम। ठीक है, मैंने सीखा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, सही है। अच्छा, तो वी हैव अ पेरेंटल स्टेट, वी हैव एन अडल्ट स्टेट एंड वी हैव अ चाइल्ड स्टेट। ये वही चीजें हमने डिस्कस की थी ना, दिस इज पिक्टोरियल, बट चीजों को गौर से समझें, ताकि एग्जाम में इफ यू गेटिंग द क्वेश्चन तो आपको काम की बात लिख के आइए। ठीक है। सो पी इज द पेरेंट, ए इज द अडल्ट एंड सी इज द चाइल्ड, एंड पी इज द नर्चरिंग पेरेंट। नर्चरिंग पेरेंट क्या होता है? यू हर्ट, कम सिट हियर, आई बैंडेज यू, आई वॉश योर वुंड, take some soup, go to bed, I'll sit by your side, let me know if you need anything. This is nurturing parent. Nurturing parent कैसा होता है? He extends your hand to help you out. This is a let me help you mode. ठीक है। critical parent क्या होता है कि you are late, you didn't take your medicines, you're doing bad on your school work, so you shouldn't do this, you shouldn't do this, pointing fingers, critical parent। ठीक है। हमारे अंदर एज अ पर्सनैलिटी नर्चरिंग पेरेंट भी होना चाहिए, क्रिटिकल पेरेंट भी होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस रखें। पाकिस्तान में आप बताइए, ज्यादातर हमारे क्रिटिकल पेरेंट्स होते हैं, नर्चरिंग पेरेंट्स होते हैं? आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सही, माई पेरेंट्स हैव बोथ शेड्स टू देम, क्रिटिकल भी हैं वो, नर्चरिंग भी हैं। ठीक है। चाइल्ड कैसा है? वी हैव अ चाइल्ड इनसाइड अस। कैसा चाइल्ड है? फ्री चाइल्ड भी है और अडेप्टिव चाइल्ड भी है। फ्री चाइल्ड कैसा होता है? आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, इरिस्पेक्टिव इफ इट्स गुड फॉर यू और नॉट, और हर वक्त एक्साइटेड। ठीक है। अडेप्टिव चाइल्ड क्या है? उसको आप बोलेंगे सिट हियर, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स, तो वहां पे एक चेयर पे सावधान होकर बैठता है, वे हिलना नहीं है यहाँ से। ये अडेप्टिव चाइल्ड होता है। उसको आप बोले फिनिश योर लेसन्स एंड कम टू मी, तो कहता है आई डिड माई जॉब, और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको शाबाशी दी जाए। ठीक है, सही है। सो कीप द चाइल्ड अलाइव इन साइड यू। जहां पे आपको अडेप्टिव होना है वहां अडेप्टिव रहे। क्लासरूम में एक्सपेक्टेड टू बी अडेप्टिव, क्लासरूम में यू कैन नॉट बी अ फ्री चाइल्ड। ठीक है। यू वांट टू डांस इन द क्लास, यू नॉट अलाउड, यू कांट बी दैट फ्री चाइल्ड। यू वांट टू डांस, वेट फॉर अ fiesta, वेट फॉर अ कार्निवल और समथिंग। ठीक है। और उसके बीच में क्या होता है? स्टूडेंट्स, एडल्ट। ठीक है। सो बीच में एडल्ट होने का मतलब क्या है? कि हम रियलिटी में जो लोग हैं, ठीक है, एज पर्सनैलिटी, हम जो रियलिटी में, इसका ताल्लुक किस चीज से है कि हम कैसे, इसका ताल्लुक आइसोलेशन में सिर्फ अडल्ट होने से नहीं है हमारा, इसका ताल्लुक इस चीज से भी कि हम किस तरह के पेरेंट हैं, और हम किस तरह के, हमारे अंदर कौन सा चाइल्ड है और कौन सा पेरेंट है। ठीक है। सो हम कैसे पेरेंट हैं, हमारे अंदर किस तरह का पेरेंट है, इसका ताल्लुक इस चीज से हमें कैसे पेरेंट्स मिले। राइट। आपका चाइल्ड किस तरह का है, इसका ताल्लुक इस चीज से भी हो सकता है व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड यू हैड। ठीक है। हम एडल्ट जब दुनिया में फैसले लेते हैं रैशनलाइजेशन के बेसिस पे, तो फैसले होते हैं फैक्ट्स के बेसिस पे, एंड वी स्टे अटेंटिव राइट ऑन दोज डिसीजंस, ताकि हम रिग्रेट को मिनिमाइज करें। ठीक है। दिस इज अगेन अ पिक्चर, लेट मी टेक माय पिक्चर फॉरवर्ड। ठीक है। सो दिस इज अगेन द एडल्ट, this is the controlling parent, this is the nurturing parent, C is the controlling parent, NP is the nurturing parent, in the middle you have adult, and this is the child. AC is the adaptive child, and C is the natural child. In the middle you have the little professor. ठीक है, ये वही आपको एरिक बर्न की पूरी फिलोसफी बताई है टुवर्ड्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। कंट्रोलिंग पेरेंट कैसा होगा? वो क्या कहेगा? उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? डू दिस, स्टॉप दैट। ठीक है। फर्स्ट होमवर्क एंड देन योर कार्टून, डू दिस, स्टॉप दैट, इज कंट्रोलिंग पेरेंट। ठीक है। अडेप्टिव चाइल्ड क्या बोलेगा? नो, प्लीज प्लीज, राइट, वो प्लीज की लैंग्वेज बोलेगा। हाउ एवर द नेचुरल चाइल्ड वुड बी टू हेल विद द होमवर्क, वी वाह वाह भाई, मुझे करना है जो मुझे करना है, खत्म। ठीक है। एंड दिस लीड्स टू द लिटिल प्रोफेसर के, despite your mother is telling you to to do your homework and tell you your cartoon, or do your homework and then you can play with bricks, he is a little professor. Let's continue playing with bricks, let's see what happens. Or I want to make a new circuit, I want to play with batteries, let's see where this takes me. So natural child and little professor leads to a creative child, right? Nurturing parent on the contrary kaisa hoga? It's okay, let, okay, you want to play with your batteries first, you want to make a circuit first, it's all right, later we sit down for work, right? ठीक है।
तो हम स्टूडेंट्स जो एज अडल्ट होते हैं ना, इसका ताल्लुक इस चीज से होता है कि हमें आया नर्चरिंग पेरेंट्स मिले हैं या इसका हमें कंट्रोलिंग पेरेंट्स मिले हैं। ठीक है, सही है। अब आप मुझे बताइए, इन आवर सोसाइटी डू वी हैव मोर नर्चरिंग पेरेंट्स और डू वी हैव मोर कंट्रोलिंग पेरेंट्स? राइट? और द लिटिल चाइल्ड वी ऑल हैव एज adults, इज ही मोर नेचुरल और इज ही मोर अडेप्टिव? This is something we have discussed today. The parent ego state. Parent ego state is this. This is parent ego state, the controlling and the nurturing. ठीक है, सही है। So the parent ego state में क्या आ जाता है? It includes the thoughts, feelings, attitudes, behavior patterns based on messages or lessons learned from parents and other parental authoritarian sources. मेरे कुछ feelings हैं, attitudes हैं, thoughts हैं towards education, towards food, towards dressing up, towards how to administer life. So I have learned them as lessons from my parents, or maybe people I consider figures in my life. Okay? They have made my should and should nots, my ought and ought nots, what I tend to do always and what I never choose to say. Okay? So it has a trajectory. It doesn't exist in me in vacuum. There is a nucleus, and they are parents or figureheads around me. Okay? I have some views towards dresses. I have some views towards work. For instance, when it comes to work, I think that gender doesn't define work. ट्रेन चलाना, जहाज चलाना खवातीन भी कर सकती हैं, क्योंकि मेरा ये thought towards work कि work doesn't define gender has come from certain parents or authoritarian sources behind me. When it comes to raising children, I have a thought, a feeling, and an attitude that it's both parents' job, not only mothers. Right? Okay. Then towards money, I have a thought process, I feel, and I have an attitude that I'm not here in this world forever. Human lifespan कितना है? 55 साल का. I'm 46 years. ठीक है. Life is a gift of God. I have a very good life. ठीक है. I'm blessed. Right? When I look people around, people have many problems. I pray to God and I'm grateful that God didn't pass me through all those tribulations, right? So I have a good life. I would want my life to be meaningful, fulfilling rather to be longer. ठीक है। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो पैसा अर्न करूं, ठीक है, उसको सेव ज्यादा करूं, बिकॉज आई हैव नोबडी टू टेक केयर ऑफ मी। ठीक है, आई डोंट हैव अ सन और अ हस्बैंड और अ फादर, मतलब ही इज 87 हिमसेल्फ। ठीक है, सो आई डोंट हैव अ मेल अराउंड मी टू टेक केयर ऑफ मी व्हेन आई एम डाउन। एक जनरल परसेप्शन क्या है कि फॉर अ फीमेल, मेल्स आर स्ट्रॉन्गर बीइंग्स टू स्टैंड विद यू इफ यू आर वीक। सो आई डोंट हैव दैट विद मी। ठीक है, सही है। So I basically want to save money that in case if I want somebody to come and attend me, a nurse or somebody, I could pay the person. Okay. If tomorrow the house where I live, it goes to my brothers, I should have enough money to rent a smaller one-room apartment. So I believe in keeping the money safe. ठीक है, सही है। फिर मेरे कुछ व्यूज हैं टुवर्ड ट्रेडिशंस। ठीक है, दिस टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय डॉक्टरेट आउटसाइड द कंट्री, कोलालमपुर इज अ मल्टी एथनिक स्पॉट, बुद्धिस्ट, Muslims, Christians, believers, non-believers, भाई you name it and the people live there. ठीक है, तो वहां जब दिवाली आती है, राइट, तो females there are buying all those traditional gaudy clothes with the bling and everything. ठीक है, सही है। तो वो सब कहते हैं हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। तो मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है। वो ईद त्योहार पे क्या शॉपिंग करते हैं, चलो हमारे साथ, तो मैं चलती हूँ उनके साथ। लेकिन जब वो कहते हैं वी आर गोइंग टू अ टेम्पल टू सेलिब्रेट दिवाली, कम विद अस, तो यार उस वक्त मैं उनसे बहुत रिस्पेक्ट से एक्सक्यूज करती हूँ। ठीक है, मेरी कुछ लर्निंग है कि मैं एक हद तक किसी के रिलीजन में शो कर सकती हूँ, क्या कहते हैं, आई कैन स्टैंड विद पीपल टिल अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, सही है। व्हेन इट कम्स टू वर्शिपिंग अदर्स, वहां पे मैं एक्सक्यूज कर देती हूँ। ठीक है, तो कुछ ट्रेडिशंस को हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, लेटर इन स्पिरिट, कुछ को मैं कुछ हद तक करती हूँ। फिर रिलीजन को लेके मेरे कुछ व्यूज हैं। ठीक है, कि रिलीजियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिलीजन कैसा है, ये वो। तो मेरे जितने भी व्यूज हैं, ठीक है, सही है, इन सब चीजों के बारे में दे बिल्ड अ प्रेजुडिस। ठीक है, वो एक व्यू बनाते हैं ना मेरा, राइट? ठीक है, सो दिस व्यू दैट आई हैव ऑन all of these things, it has a lot to do with what parental or authoritarian sources I've been nurtured in. ठीक है, सो मेरे व्यूज अगर नर्चरिंग हैं तो मैं इन चीजों के बारे में क्या होंगी, सिंपैथेटिक होंगी, केयरिंग होंगी। ठीक है, खवातीन हेड स्कार्फ पहनती हैं या नहीं पहनती हैं उनका मसला है, दिस इज अ नर्चरिंग व्यू। ठीक है, क्रिटिकल व्यू क्या होता है, ऑल वुमेन शुड वेयर हेड स्कार्फ और नो वुमेन शुड वेयर हेड स्कार्फ, दिस इज क्रिटिकल। सो इफ आई बीन रेस्ड बाय नर्चरिंग पेरेंट्स,
ठीक है, मैं बोलूंगी इट्स अप टू देम, इट्स देयर कॉल, राइट, बोथ आर रिस्पेक्टफुल। ठीक है। क्रिटिकल व्यूज में हम क्या करते हैं, वी आर फाइंडिंग फॉल्ट्स, वी गो जजमेंटल, एंड वी यूज कॉन्डिसेंडिंग व्यूज। कॉन्डिसेंडिंग व्यूज का मतलब होता है इंसल्टिंग व्यूज टुवर्ड्स अदर्स, राइट। ये पेरेंटल ईगो स्टेट है। अडल्ट ईगो स्टेट में क्या है, अडल्ट के अपने थॉट्स हैं, अपने फीलिंग्स हैं, अपने एटीट्यूड्स हैं, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, विच आर बेस्ड मोर ऑन डाटा एंड फैक्ट्स, नॉट ऑन व्हाट आवर पेरेंट्स हैव डन टू अस, नॉट ऑन हाउ दे हैव रेज्ड अस, लेकिन वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, सही है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि यार स्कॉलरशिप आई है अभी मास्टर्स की, ठीक है, तो आप कहते हैं मैं सबमिशन ले लें। मैं कहती हूँ मुझे बहुत शौक है एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का, लेकिन उन्होंने बोला कि यू शुड नॉट बी मोर देन 30 years ऑफ एज, सो आई एम 46, मैं उसमें नहीं जा सकती हूँ। तो मेरा ये डिसीजन दैट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट स्कॉलरशिप इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट अबाउट व्हाट माय पेरेंट्स आर सेइंग और हाउ दे हैव पेरेंटेड मी। ठीक है। So you make decisions based on logic. It's very logical. The ad says it's for people who are under 30. So it's logical. I don't fit in. ठीक है, राइट। सो आई शुडंट बी इमोशनल अबाउट इट। आप रो रहे हैं, आपको बुखार हो गया, आपको डिप्रेशन होगा कि भाई मैं जा ही नहीं सकता, डोंट बी इमोशनल, डोंट बी अ फूल। तो ये क्या है, एडल्ट की तरह मामलात को लेके चलना और हैंडल करना। चाइल्ड क्या है, मैंने आपको बताया कि अच्छा सुनो, ये चीजें हमने थोड़ी देर पहले पढ़ ली थी, अब उसको हम डिटेल बाय डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि मिस ये रेपिटेशन हो रहा है, तो इट्स नॉट रेपिटेशन, इट्स जस्ट दैट I'm parsing through the whole topic to simplify it for you. So children also have thoughts, feelings, and attitudes. They also behave differently based on childlike emotions, their impulses, and their feelings. Childlike examples क्या होती हैं, impulsive, बच्चे अचानक से जो है excited हो जाते हैं, impulsive होते हैं, अचानक से रो पड़ते हैं, ठीक है, self centered होते हैं, वो चाहते हैं हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात रखी जाए, हमें अहमियत दी जाए। बट चिल्ड्रन ऑल्सो शो एंगर, चिल्ड्रन आर ऑल्सो अफ्रेड। ठीक है। चिल्ड्रन ऑल्सो शो हैप्पीनेस, दे ऑल्सो शो प्लेयर, चिल्ड्रन आर ऑल्सो रेबल्स, बच्चे बाज दफा डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो शो हैप्पीनेस, चिल्ड्रन आर ऑल्सो क्यूरियस एंड दे आर ऑल्सो ईगर टू प्लीज। वो चाहते हैं कि हम कोई अच्छा काम करें और हमें फौरन से शाबाशी दी जाए, राइट। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये वही चीज हमने पहले पढ़ी थी, उसका एक चार्ट सा बना के दिया हुआ है, लेट्स सी। अभी देखें स्टूडेंट्स, ईगो पोर्ट्रेट्स में, दिस इज एन ईगो पोर्ट्रेट। ठीक है। हम सबके अंदर क्या है, पेरेंट भी है, चाइल्ड भी है, पेरेंट भी है, एडल्ट भी है और चाइल्ड भी है। ठीक है। तो पीपल हैव फेवरेट प्रेफर्ड ईगो स्टेट डिपिक्टेड बाय लार्जर सर्कल इन अ डायग्राम। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक पर्सनैलिटी ये है, इस पर्सनैलिटी में क्या डोमिनेंट है, पेरेंट डोमिनेंट है। पेरेंट भी एग्जिस्ट करता है, अडल्ट भी एग्जिस्ट करता है, चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है, हाउएवर द पेरेंट इज डोमिनेंट। ठीक है। जिस पर्सनैलिटी में अडल्ट डोमिनेंट होगा उसमें भी पेरेंट एग्जिस्ट करता होगा, अडल्ट उसमें भी होगा, चाइल्ड उसमें भी होगा, लेकिन अडल्ट डोमिनेंट होगा। चाइल्ड पर्सनैलिटी में भी पेरेंट होता है। हम अगर बोलें कि बच्चों में पेरेंट नहीं होता, बच्चों में पेरेंट होता है। बास बच्चे बड़े फर्म होते हैं, दे आर 5 years, दे आर 7 years, यू ट्राई टू टॉक टू देम, दे वुड गेट अप फ्रॉम द सीट एंड वॉक अवे, बिकॉज द पेरेंट्स दिखाया हुआ डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो ये आपका पेरेंट है ना, आपको कंट्रोल से खा रहा है कि माई मदर टोल्ड मी, माई फादर टोल्ड मी नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, सो आई शुड नॉट, आई बेटर मूव फ्रॉम हियर। सो दिस इज अ पेरेंट इनसाइड अ चाइल्ड। ठीक है। वो बच्चा स्कूल में जाता, चीजें शेयर करता, सो टीचर ने बोला शेयर योर लंच, तो लंच बॉक्स खोलता, सबको जाके देख के आता, मैं आज ये लेकर आया हूँ, तो ये उसका अडल्ट है। फॉलोइंग थिंग्स, rationalizing, right, that if somebody has lesser serving, if somebody forgot to bring something, so let's I can share। ठीक है। और एस चाइल्ड में सी डोमिनेंट है, राइट। ठीक है। okay, with this we end our lecture। what is the take home learning, when the relationship is right, details are negotiable। आमतौर पर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लोग बातचीत करने से घबराते कब हैं, जब आप उस रिलेशनशिप की बिल्कुल माइन्यूट चीजों को डिस्कस करने लगते हैं। पीपल रन अवे, दैट इज द स्केरियस्ट पार्ट, पीपल डोंट लाइक डिस्कसिंग डिटेल्स। ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंटरेक्शन स्टार्ट हुई ऑन द राइट फुट, या टाइम एंड ऑन आप एफर्ट करते हैं टू ब्रिंग थिंग्स इन लाइन वेयर दे शुड बी गोइंग, तो डिटेल्स शेयर की जा सकती हैं। ठीक है। हाउ एवर व्हेन द टेंशन इज हाई, डिटेल्स बिकम ऑब्स्टिकल्स। टेंशन इन व्हाट, इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। आप जब उसको पाइल अप करते रहते हैं, व्हेन यू डोंट क्लियर द फॉग इन रिलेशनशिप्स, या आप इस दौड़ में है कि पहले वो आए, उससे गलती की थी, पहले वो आए, या उसने तो गलती की थी, मैं सेकंड टाइम मौका क्यों दूं, इस तरह से रिलेशनशिप में टेंशन बिल्ड होती है। ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आते हैं, एंड सून वी वुड लूज ऑन पीपल, राइट। This ends the topic. Thank you so much. Have me read, have me learned, have me heard over your week, and get back to me in the first week. Okay. Our last class is on the second leg of the lecture on transaction analysis.
When we meet, we have important details to do, and I'll talk about the paper in the last class, right? Thank you so much. Bye-bye.